The beautiful, iconic Jama Masjid of Delhi. Jama Masjid is in Purani Delhi, which falls within the Balimaran Assembly constituency. The seat holds a great deal of significance. The reason because it is a Muslim-dominated seat. The Muslim vote as an important vote for all political parties who are in fact doing what they can to woo this community in these elections. The fight, as our report is going to show you, is not just between the Aam Aadmi Party and the Congress, but there are other players as well. We're going to be telling you more about that. And guess who else isn't left behind in this challenge? Asaduddin Owaisi's AIMIM has also thrown its hat into the ring. All to woo the Muslim voters. Our first stop, Okla's Shaheen Bagh. आप वोटर हैं शाहीन बाग में, क्या काम हुआ है, आप खुश है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गवर्नमेंट से ठीक है, केजरीवाल की गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट जैसे एजुकेशन लेवल पे उन्होंने काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी यहाँ की एमएलए हैं बस उनसे मुझे थोड़ा सा नाराजगी है कि उन्होंने जितना करना चाहिए था इस 5 साल में, 10 साल से वो तो है यहाँ पर, तो इस 10 साल में उन्होंने जो होना चाहिए था वो नहीं किया। रोड्स देख लीजिए आप, साफ सफाई देख लीजिए, कैंडिडेट उन्होंने गलत फिर से चुन लिया है, दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए था। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नहीं, यहाँ पर जो आपका जो डेवलपमेंट तो नाम की कोई चीज हुई नहीं है, ना विधायक जी ने किया है, और यहाँ पर आने वाले 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मतलब उन्होंने काम नहीं किया? इलेक्शन के पीरियड में जो रोड पूरे आप देख रहे हैं, शाहीन बाग के हालात और यहाँ के हालात, कोई डेवलपमेंट इस तरह का नहीं हुआ। विकास का जो मुद्दा है, विकास का हुआ ही नहीं ना, वो अधूरे वादे रहे। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं शाहीन बाग को पूरा कूड़े का ढेर लगा रखा है। और अदर दिल्ली में भी हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं। अच्छा, मतलब ये फ्री बिजली और ये फ्री चीजें देने से काम नहीं चलेगा? हाँ, इससे काम नहीं चलेगा जी। पब्लिक चाहती है चेंज। क्या हुआ भैया जी? यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है मैम, यहाँ कि घंटों निकल जाता है जाने में। जब शाम को आप आइए तो 1 घंटा से कम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर काम नहीं किया है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, जाम के लिए सालों साल से पब्लिक जो है कि परेशान हो जाता है। आप पैदल आएंगे ना मैम तो आप निकल नहीं पाएंगे, ये स्थिति है यहाँ का। थोड़ा सा बारिश हो जाता है मैम तो आप निकल नहीं पाएंगे। बारिश के समय में आके देखिए, यहाँ बहुत स्थितियाँ खराब रहती है। यहाँ के ना काउंसिलर ना कोई विधायक, कोई नहीं काम करता है यहाँ। यदि किया होता तो देखिए, बहुत परिस्थिति खराब है यहाँ का। तो आपको लगता है कि इस बार चेंज होना चाहिए, बदलाव आना? बिल्कुल बदलाव तो होना ही चाहिए मैम। ऐसा क्या उम्मीद है, कौन काम करेगा दिल्ली के लिए बेहतर? आप देखिए, वो तो अरविंद केजरीवाल तो बहुत अच्छा काम किया भी। अब उनके जो हैं, अब वो सब जो है कि लीडर सब नहीं कर रहे हैं, तो उसके क्या कमी है। Well, as you can see, clearly a lot is left to be decided and done in terms of the work in Delhi's Shaheen Bagh, within the Okla constituency, considered one among the 10 constituencies where the Muslim population is more. Essentially, political parties see them as a so-called Muslim vote bank. But are the people of Shaheen Bagh in Okla going to be voting on the basis of religion? Will the protests from 5 years ago play on their mind, be on top of their mind, a sense of disappointment with Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal as far as the protests are concerned? And the fact they say that he didn't speak in favor of this community, is that going to be a deciding factor?
Is the so-called Hindutva, soft Hindutva push of Aam Aadmi Party going to be deciding the outcome of these elections, at least for 10 seats in Delhi, which are dominated by the minority community? Or will this lack of development, lack of work, like I said at the very outset, the fact that a lot of work needs to be done, going to be a deciding factor in these elections? Will the people vote on the fact that work needs to be done even further, and dissatisfaction with the candidate will cause the Aam Aadmi Party dear, or will the voters here give the Aam Aadmi Party a chance once again? Muslims dominate 10 out of Delhi's 70 assembly seats and makes up round about 12% of its population. It has shifted its support between the Congress and the Aam Aadmi Party in recent years. आप सबके चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें अरविंद केजरीवाल जी। जोरदार तालियों से स्वागत। Aam Aadmi Party's strong organizational network and Arvind Kejriwal's image as a pro-minority leader, plus his popularity amongst the minorities, may continue to attract a large number of Muslim votes, in spite of the challenge posed by the AIMIM. इस बार दिल्ली में किसको सरकार बनानी चाहिए और क्यों? केजरीवाल जी को बनानी चाहिए। और क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए और काफ़ी सारी फैसिलिटी दी। मुझे पूरी उम्मीद है केजरीवाल पूरी बहुमत से फिर दोबारा से आएंगे जी। और उनकी शान में एक शेर भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब जब चलेगी झाड़ू उठेगी वफा की धूल, न रहेगा हाथ न रहेगा फूल। बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि कौन आएगा इस बार? केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, क्या काम किया अरविंद केजरीवाल ने सीलमपुर? सारे काम किए हैं। देखिए, मान ली लेडीजों का बसों का किराया अच्छा नहीं किया, ठीक है, फ्री कर दिया। फ्री कर दिया, ठीक है। और बाकी जो नहीं, अब 2500 रुपए देने के लिए 2100 कह रहा है देने के लिए, देगा वो। अच्छा। बाकी बिजली का, पानी का फ्री है। जो फ्री है इसलिए आपको लग रहा है कि तो अब मालिक और कोई तो दे ही नहीं रही। अच्छा। कोई सरकार दे ही नहीं रही। लेकिन विकास के नाम पे पूछना चाहूंगी, जैसे सड़कें अब में जहाँ से है वहाँ पर पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। देखिए, सड़कें तो हमने गंदी कर रखी है, नालियों में हम खूब कूड़ा भर रहे हैं, तो केजरीवाल की थोड़ी गलती है। कांग्रेस भी खूब जम के कैंपेन करी है। ऐसा बोला जाता है कि माइनॉरिटी जो है वो पहले कांग्रेस को वोट करती थी, अभी आपको वोट करती है। अब तो आप ही ज्यादा बेस्ट है दिल्ली के लिए, क्योंकि उन लोगों ने काम किया। शिक्षा की लाइन में भी काम किया उन लोगों ने, हॉस्पिटल में भी काम किया। मेरे ख्याल से आम आदमी सबसे बढ़िया। गोपालपुरी का मंच है, मुझको बात करो मेरे देश प्रेमियों। किसने काम किया है सीलमपुर के अंदर? अब आम आदमी पार्टी है और इंशाल्लाह अब आएगी आम पार्टी, फिर काम करेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस के क्या चांसेस है यहाँ पर? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटीज जो है वो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को ही वोट। नहीं, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं यहाँ पर, आम पार्टी का है सारा। मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आप मुसलमान हैं इसलिए आप आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, या आम आदमी पार्टी ने काम किया बोल के आप आम आदमी पार्टी को वोट? नहीं, काम किया आम आदमी पार्टी ने, काम किया है। काम के नाम पर वोट दे रहे, धर्म के नाम पर आप नाम क्या बनी, काम के नाम पर वोट दिया, काम पे ही वोट दिया जाएगा। धर्म के नाम पर आप वोट नहीं दे रहे? क्या आपको डर है, बीजेपी से डर है, कोई और पार्टी से? नहीं, काम के ऊपर वोट है यहाँ पर। अभी तक कोई कैंडिडेट सही उतारे नहीं यहाँ पर। बीजेपी का कैंडिडेट अभी तक कोई सही आया ही नहीं। अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो आप बीजेपी को भी वोट करने को तैयार? वोट करेंगे हम तो, काम पे वोट करेंगे। कोई ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सिर्फ काम चाहिए हमें, काम पे होगा तो काम पे वोट करेंगे। यहाँ पर धर्म के नाम पे वोट दिए ही नहीं जा रहे। अगर धर्म के नाम पे वोट दिए जाते तो हमेशा वैसे कुछ न कुछ सीट आती। लेकिन आप देखेंगे यूपी के अंदर इतने सारे मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं आ पाती है सीट। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है जो सिर्फ बीजेपी से डर के मुसलमान कैंडिडेट को वोट देगा। वो हम हमेशा काम के नाम पे वोट देना चाहता है। मुसलमान कभी चाहता ही नहीं, ये एक्सपेक्ट नहीं करता गवर्नमेंट से कि हमें इतनी सब्सिडी मिले, हमें ये चीज मिले, वो चीज मिले। वो हमेशा काम की तरफ रिश्ता है। अगर जो पार्टी काम करेगी उसको वोट करेंगे, वो हमेशा सपोर्ट करेंगे।
But not everyone is happy, especially in Delhi's Shaheen Bagh, where protests took place just 5 years ago on the issue of controversial Citizenship Amendment Act and against the National Register of Citizens. जो 5 साल पहले हुआ उसका इम्पैक्ट आपके वोट पे है या आप विकास और काम पर वोट कर रहे हो? नहीं, जो शाहीन बाग का ये प्रोटेस्ट वाला हुआ था उसमें केजरीवाल जी कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट किया गया था उसमें भी जी। तो आपको नाराजगी इस बात से कि कुछ बोला नहीं गया था उस समय के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से? जी बोला नहीं गया था, उन्होंने कुछ नहीं बोला था। और फिलहाल अब आप देख लिए जो 5 साल अमानत भाई रहे तो उन्होंने 4.5 साल तो गायब रहे, वो 4.5 साल के बाद लौटे। 5 साल उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा है, मतलब रोडों पे काम किया थोड़ा बहुत, इसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन के टाइम पे आ गए। तो आपको नाराजगी है? तो आप कह रहे हो कि जो शाहीन बाग में 5 साल पहले हुआ वो भी आपके मन में जहन में है, वोट डालने से पहले याद है आपको? याद है बिल्कुल। क्या नाराजगी है? मतलब उन्हें बोलना चाहिए था, सब बराबर हैं के सपोर्ट में बोलना चाहिए, मतलब सबके लिए बोलना चाहिए था, हमारे लिए मतलब सबके सपोर्ट में बोलना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। और ये क्या है? ये बहुत अच्छा है, ये ले दो। ये कितने का है? और ये क्या है? Well, the fact is that the Aam Aadmi Party has long enjoyed the love and support of the Muslim population, and that AAP could also be the default choice of many people in many of these Muslim-dominated constituencies. Many people talk about the fact that Arvind Kejriwal has done work in the area of health and education. And freebies, to remember, is going to be an important deciding factor. It's going to be no different here for the Muslim population. आपको क्या उम्मीद है सरकार से? हमें उम्मीदें तो बहुत है सरकार से, हमारा काम इस टाइम केजरीवाल ज्यादा कर रहा है। अच्छा। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा मौका मिलेगा? दोबारा भी मिलना चाहिए, तिबारा भी मिलना चाहिए, चौबारा भी मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसे कांग्रेस को नहीं वोट करना चाहिए? कांग्रेस भी पार्टी अच्छी है, कांग्रेस कौन को बुरा करिए, कांग्रेस भी अच्छी है। लेकिन आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए क्योंकि उसने बहुत सहूलियतें कर दी है। अब बीजेपी का ये कहना है और कई लोग और भी कहते हैं कि फ्री देने से नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, कि फ्री क्यों बांटे कुछ भी? वो फ्री क्यों है मैम, हमारा ही तो पैसा है, वो भी टैक्स पेयर का मनी है। यस, यह केजरीवाल ने काम करा। अच्छा, लाइटों का काम है और ये पानी का काम है, सफाई भी अस्पतालों में हुई भी। अच्छा, आपका एरिया सुधर गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काम किया आपके? हाँ, वो सुधरा हुआ ही था। अब फिलहाल इस टाइम पे ऐसी हो रहा है, अभी कोई तवज्जो नहीं दे रही, जब कूड़ा पड़ा वहाँ पड़ा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई केजरीवाल ने तो काम ठीक करा है पहले। अब ये लोग जो फ्री बाइट जो है, कोई 2500 रुपए बांट रहा है, कोई 2100 रुपए बांट रहा है, ये सब टैक्स पेयर का पैसा होता है। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, ये वोट खरीदने के लिए नहीं होता। कम से कम वो बात ठीक है कि जो है जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं से लेके गरीबों को दिया जाता है, लेकिन गरीब को उसको दिया जाना चाहिए ना जो काम करता हो। क्या ये फ्री भी कल्चर आपको पसंद? बिल्कुल पसंद नहीं है, फ्री पैसा बांटा जा रहा है और मेरी नजर में बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम किसने किया? वैसे तो शीला दीक्षित ने बहुत काम किया है और उसके बाद केजरीवाल ने भी अपनी जगह सही काम किया है, जैसे फ्री बिजली, पानी और बस फ्री लेडीज के लिए और स्कूल के लिए और स्वास्थ्य के लिए काम अच्छा किया है। सब जगह डेवलपमेंट हो रहे। अरे केजरीवाल जो आज गलियों में पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ, मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाज। ये मेरे राइट साइड में जो रास्ता है ये भी प्लीज जो है खाली कर दीजिए। Thousands have turned up at the rally. The tension in the air is palpable. थोड़ा सा ये खाली कर दें ये हिस्सा। मैं अपने वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा कि ये लोग यहाँ पर हो जाए। This is Delhi's Shaheen Bagh area, the place that saw protests because of NRC and CAA just 5 years ago. This place has seen fair amount of tensions, even riots. And right now,
Right over there, there is a rally that is to be held by the AIMIM chief, and Hyderabad MP Asad Uddin Owaisi is now addressing a rally in this area. There's heavy presence of security, police forces and also paramilitary forces, given the reputation that this place has vis-a-vis the kind of tensions it's seen in the past. Delhi mein is back. AIMIM's entry into the electoral fray marks a bold challenge to the political hegemony of both the AAP and the Congress in Delhi. It could directly benefit the Bharatiya Janata Party since it has the potential to divide the Muslim vote. This is the Shaheen Bagh area of Delhi, and apart from the Okhla and the Mustafabad assembly seats, which are just 2 seats of the 70, AIM has chosen to field its candidates only here in 2 seats. Now, the reason obviously is for us to see. This is a strategic move to get the support of the Muslim community. It's important to note that both the candidates from here, Shifa ur Rahman, who's contesting from Okhla, and Tahir Hussain, contesting from Mustafabad, continue to be behind bars. But their party boss, AIMIM chief Asad Uddin Owaisi, is actively campaigning for them in these 2 assembly seats. The decision by the Aam Aadmi Party to contest the 2025 Delhi Assembly elections without an alliance with the Congress has set the stage for a high-stakes battle that could alter the political dynamics of the city-state. It could throw in some surprises for the Congress too, that is desperate to find lost ground in Delhi. The Congress traditionally has enjoyed the support of the Muslims. Many unhappy with the AAP may wish to give the Congress a chance. But it's unclear the extent of damage it would cause to the Aam Aadmi Party. यहाँ पर किसने ज्यादा काम किया? कांग्रेस। आना किसको चाहिए? कांग्रेस। मैडम, दिल्ली में 10 साल राज किया है शीला दीक्षित ने। सॉरी, आप देख लीजिए कितने काम किया है दिल्ली के अंदर, अस्पताल बनवाए हैं। और आप यहाँ जिस एरिया में खड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा नजदीक में ही है, या जग परवेश हॉस्पिटल है, वो शीला दीक्षित की देन है यहाँ पे। और बहुत विकास किया है, ऐसा कांग्रेस ने ऐसा नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल को मौका दोबारा देना चाहिए? नहीं, हमारा कांग्रेस को इस वक्त देने का है। इस बार कांग्रेस को देना चाहिए, हमें लगता है, क्योंकि इस बार यहाँ अपने ओखला में कोई काम ऐसा हुआ नहीं जो हम दोबारा केजरीवाल को वोट दें। कांग्रेस के आने के चांसेस है? क्या लगता है इस बार चांस है, उम्मीद तो है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर अच्छा काम किया? पहले करता था, अब नहीं करता इतना काम। पहले करता था। तो अभी क्या कांग्रेस को आना चाहिए? कांग्रेस को आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जो काम जो यहाँ करते हैं ना, यहाँ तो कांग्रेस ज्यादा करेगी इस बार। AAP has also not shied away from playing the soft Hindutva card in these elections. Lord Ram has been invoked. एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। इतने में रावण आया सोने का हिरन बनके। सीता मैया लक्ष्मण को बोली, मेरे को ये हिरन चाहिए। लक्ष्मण बोला, ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली, नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरन को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। Meanwhile, BJP has been quick to fire the Chunavi Hindu Bab at the Aam Aadmi Party. पिछले विधानसभा चुनावों से पहले शाहीन बाग उठाया, उत्तर पूर्वी का दंगा करवाया कि किसी तरह से चुनाव जीत जाएं। अब दिल्ली में धार्मिक उन्माद कैसे बिगाड़ा जाए, तो मंदिरों का नाम ले रहे हैं। सारी उम्र तो आपने मंदिरों की चिंता की नहीं, भगवान राम का अनादर किया, अब इनको मंदिरों की याद आ रही है। AAP won all 7 Muslim-dominated seats in 2020, a fact that Congress cannot ignore. Rahul Gandhi hence started his campaign from Seelampur, which is one of Delhi's 7 constituencies where Muslims make up more than 40% of the electorate.
Will the soft Hindutva card being played by Arvind Kejriwal alienate the Muslims? ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर जो कौम है वो वोट डालता है और ये नेताओं को ऐसी बातें करनी चाहिए। नहीं, धर्म के आधार पे तो कोई वोट नहीं डालता है। किसी भी पार्टी से हमारी कोई अनबन नहीं है। बीजेपी से भी कुछ नहीं, उससे भी क्या अनबन होगी। हमारी बीजेपी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे भी। अरविंद केजरीवाल जो बार बार रामायण की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से ऐसा देखा जा रहा है कि वापस से दिल्ली इलेक्शन में भी हिंदुत्व की बात हो रही है। आपको लगता है कि ये सही है? देखो, ना हिंदू है ना मुसलमान की है, सब एकता है, सब इंसान है। हिंदू मुसलमान के वजह से बीजेपी अपनी सीट खो रही है, क्योंकि यहाँ एकता है, इंसान है, मेन है मतलब रोजगार, विकास। इसके आगे मतलब ये मंदिर मस्जिद का कोई धर्म के आधार पर वोट नहीं डालना। नहीं, धर्म के आधार पे कुछ नहीं करना चाहिए। बेवकूफ बनाया जा रहा बस लोगों को धर्म के आधार पे। आदमी इंसान को विकास चाहिए, जो भी हो, हिंदू मुस्लिम को विकास ही चाहिए। और क्या, स्कूल हो, एजुकेशन हो, काम पे हो, रोजगार हो, इस चीज पे ध्यान दिया जाए। ये तो बेवकूफ बनाने वाले काम है आपको धर्म के आधार पे। But there is also another side to the Muslim factor in Delhi elections. That of educated middle-class Muslims who neither want to vote along religious lines nor do they endorse freebies. There is a lot of conversation about Muslims and elections, how the Muslim population is seen as a vote bank, so to speak, you know. Sabse pehle baat to, how do you respond or how do you feel when these discussions happen? इलेक्शन में देखिए, पोलराइज करने के लिए कहीं कहीं होता है और हर पार्टी करती है। मेरे अपने हल्के में कभी कोई हिंदू मुस्लिम किसी तरह की कोई बात हमने कभी सोची नहीं, और मेरे अहबाब में बहुत सारे हिंदू अच्छे लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा आजकल उनके एटीट्यूड पे फर्क नजर आता है। Development in areas where the Muslim population is more in a way suffers. हमारे इलाके में डेवलपमेंट की तरफ से बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो यहाँ होनी चाहिए और इलाकों की तरह से यहाँ भी होनी चाहिए, वो नहीं होती यहाँ पर। Uma, you know, Mahila is an important vote bank for all political parties. And that's the reason why Mahila Samman scheme and Pyari Didi Yojana scheme and all these schemes. What do you think about these schemes? What is real empowerment? बहुत अच्छी स्कीम है। आपने इलेक्शन से पहले you're giving out 21-2200। कब तक चलेंगे वो पैसे? आपको कुछ ऐसा करना है, आप नॉट द पार्टी बट आप एज एन अथॉरिटी कुछ ऐसा करना है so that they can earn those 2200 every month, every year लगातार। तो that is not happening. फ्री में देने से कुछ नहीं होगा। So this is not truly towards for the betterment of neither women. betterment, not benefit. I cannot call it development, not at all. मुस्लिम्स को एज अ वोट बैंक देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि आप एक वोट बैंक हैं? I don't believe in that. And I would like that in my country the government actually works for the country. So उसमें मुस्लिम होना या नहीं होना is really tertiary for me. I think there are many things that needs to be resolved first. फ्री भी कल्चर को आप कैसे देखते हैं? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस कर दे, वोट उस पार्टी को जाए, क्या ये सही है? Definitely not. I think it's very regressive because जो जितना भी ये फ्री कल्चर हो रहा है, so I think it is merely done अपनी कमियों को छुपाने के लिए. So the entire focus that should be on education and on creating employment and bettering the services is lost when these things are provided as a free thing to everyone. क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? अगर पढ़ेंगे बच्चे, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो फ्री होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों उनको फ्री मिलेगी? अगर उनको पूरा गवर्नमेंट ध्यान देगी तब, क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान देंगे, कोई सी भी गवर्नमेंट है ध्यान देती नहीं है, ना पढ़ाई होती है, ना कोई काम है, ना कुछ है, तो फिर लोग यही करते हैं कि ठीक है अगर फ्री मिल रहा तो सही। और शायद गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोग फ्री होकर घर में बैठ जाओ, जो जी चाहे गवर्नमेंट का करती रहे. By and large, it is being said that Muslims go with certain political parties. Do you believe that's true? Not you, in general. So I think overall, all the parties are playing on the same narrative. However, in this, the hindsight is that nobody is working as a government. तो वो pro-Muslim कह के, so you may buy once or twice, that is what has happened.
And the overall effect is in the general minds of people. The kind of provisions that are happening, कि वो free दे दो. So you are planting this whole idea of pro or against Muslim, finally giving up anything to do with progress, education, and the ability to think. So if you take it away and you only plant this idea, there is no other narrative. And I think the opposition is also playing on the same. So finally, I don't see that any of the parties are actually thinking for the country. 12% of votes. But minorities are in a position in Delhi to give that much needed boost to the incumbent arm. Or perhaps help Congress revive its electoral fortunes in the national capital.